I was the first person from IIM Lucknow to join McKinsey, तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी. So what is mental model या framework, आप कैसे evaluate करते हो किसी situation को कि maybe this is the right way forward and then you take that step? एक प्रोज एंड कॉन्स से ज़्यादा जो है एक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ऑन योर ओन पर्पस. लोगों ने मेरे को बोला कि भैया क्या कर रहे हो आप, रियली कम फ्रॉम अ वेरी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, ये स्टार्टअप तो अलग दुनिया है. If you look at all these startups, सबका कहना होता है कि हाँ डेटा हमारे पास होना चाहिए, पर डेटा का यूज कैसे करना है इसके बारे में किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती. देखिए, डेटा जो है दुनिया में इज प्रॉब्ली द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट. एक स्टार्टअप को तो ड्रिंकिंग से मतलब है ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि टू मेक सेंस ऑफ डेटा फर्स्ट यू हैव टू नैरो इट. तो कंसल्टिंग एज अ फील्ड यू आल्सो फील कि विल बी डिसरप्टेड. Entire process is getting disrupted by AI very massively. We are in the age of software 3.0, where software is writing software. ये भी साथ साथ है कि जो कंसल्टिंग जो वैल्यू प्रोपोजिशन है शशांक, वो इवॉल्व होगी उसके साथ. AI is going to disrupt. Hi, Ritesh sir. Welcome to Growthcast podcast. From McKinsey to Flipkart to co-founding Inseedo, your journey has been an inspiration. But if I have to ask you, what was one pivotal moment in your journey, what it would be, and it would be great if you can introduce your journey to the audience as well. Yeah, Shashank, very, very nice to be talking to you. So my journey has been, I'm a Delhi guy. So went to college in Delhi, IIT Delhi, and then went to MBA to your town, Lucknow. Yes, sir. I am Lucknow, and joined McKinsey from campus, and it was a relatively big thing in 1996. So it was a Right. dream come true. And then I left McKinsey after 4 years to do a startup, a dot-com startup, and it soon became a dot-com bust. So it was a great disaster. So, and a very important, I think, thing that happened in my life. And then I came back to McKinsey, and I set up and led McKinsey's Global Knowledge Center for 8 years. Very, very important part of my Right. journey. And then I was at Fidelity Investments. And I was the CEO for India, but I also had a very unusual role. I was also heading strategy for all of Fidelity's international business. Nice. So it was 6 years where 2 weeks in London, 2 weeks in Gurgaon. So a lot of air miles, which I could never at the time to use myself. At Fidelity, I realized technology was changing the world very dramatically. So I wanted to experience that. So I joined Flipkart as the CEO at a very critical time in Flipkart's journey. We were locked in this battle with Amazon. Right. And but eventually we ended up selling to Walmart, not something I wanted to do because I had joined Flipkart to build a great Indian multinational, not to Right. be again work in an American multinational. So that's when I left, and that's where I I acquired or took a stake in Flipkart in Inseedo, and have been building this company for the last 8 years now. That's when I also moved to the US, though Dil hai Hindustani, so I'm here almost every month Right. because we were talking about Rajma Chawal, so I love Rajma Chawal too much. So I'm Great. back. Definitely, we'll have it if your schedule permits. So so that's been the last 8 years. But along, in this, I always had this passion for giving gyan. So, and I always had this blog, which I very humbly called Nitin's Fundas. Right. So, Nitin Fundako at some stage during COVID, I converted into my first book, Winning in the Digital Age. And then I wrote my second book, Mastering the Data Paradox. And I've just released my third book, Human Edge in the AI Age. So, in my journey, along with many things, growing in my business career, अब साथ साथ में author भी बन गया हूँ. So that's a little bit my journey. I think you asked me that what was The pivotal moment. a in this. pivotal moment. Many important points, but when my venture failed and I was coming back to McKinsey. At that point, I chose not to join back in McKinsey Consulting, but the McKinsey Knowledge Center was it was like a very, like an embryo. It was a very small, like startup within McKinsey. Right. And it was not just the back office, it was the back office of the back office. So I chose to join that startup within McKinsey and to lead that at a very fairly young age. And I think that's the most important decision I made, because on one hand was a very, very
very predictable path. I had been a good consultant, and I knew that I would do that quite well. So there was that path, and which was very fairly sure shot. On other hand, was a very risky unknown path because nobody knew what this was 2002. So Yes. no, people are not talking about knowledge offshoring or analytics or things like that. So it was, I took a big risk, but I think that 8 years at McKinsey Knowledge Center and building that into eventually the biggest, the largest knowledge center in the world, Right. and also an entity which redefined McKinsey, but also what is possible from India. I think that was an extraordinarily rewarding journey. Whatever I know about leadership, a lot of credit goes to that. Whatever I know about entrepreneurship, a lot of credit goes to that. So I think that was that decision, and that 8 year journey, I think, is probably the most pivotal part of my career journey. तो आपने काफ़ी अच्छी बात कही। आई थिंक वन थिंग दैट एनी वर्किंग प्रोफेशनल सीक्स इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी हो इन टर्म्स ऑफ सैलरी हाइक, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन। और ये जो आपने पाथ लिया वो बहुत ज़्यादा लोग ले नहीं पाते। सो व्हाट इज़ मेंटल मॉडल या फ्रेमवर्क, आप कैसे इवैल्यूएट करते हो किसी सिचुएशन को कि मे बी दिस इज़ द राइट वे फॉरवर्ड एंड देन यू टेक दैट स्टेप? सी, आई थिंक किसी भी डिसीजन को देखने के लिए um, एक प्रोज एंड कॉन्स से ज़्यादा जो है, एक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ऑन योर ओन पर्पस। राइट। ये पर्पस मतलब एटलीस्ट मेरी डिक्शनरी में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो मेरा हमेशा रहता है कि दिल मांगे मोर, राइट। कि लाइफ जो है हैज़ अ पर्पस, इट्स अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट। सो मैं उस चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचता हूँ, एंड माई decisions and every aspect of my journey is very driven by that sense of purpose, कि है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बनाना है। मेरा हमेशा एक रहा है कि आई बीन वेरी फैसिनेटेड बाय बोथ बिजनेस, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। तो शुरू से मैंने बिजनेस देखा। अब पढ़ाई में अच्छे थे तो वो थोड़ा बिजनेस से, फैमिली बिजनेस से अलग चले गए। तो तो फिर होता है कि आप इतना कई बार पढ़ लेते हो कि इट्स मे बी नॉट वेरी इजी टू कम बैक टू द फैमिली बिजनेस, बट हमेशा बिजनेस का मेरा एक था कि एक कुछ चीज़ बनानी है। आई वॉज ऑलवेज वेरी ड्रिवन बाय सेंस ऑफ बिल्डिंग समथिंग। बट उसके साथ साथ मेरा एक काफ़ी रुझान हमेशा ये भी रहा कि एक देश के लिए बहुत रुझान रहा है हमेशा। और साथ में स्पिरिचुअलिटी जो है कि इंडियन जो एक हमारा विजडम और ट्रेडिशंस है, उस पे मेरे को बहुत, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट। सो आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू फाइंड समथिंग व्हिच ब्रिंग्स दीज थिंग्स टुगेदर। राइट। सो वो पर्पस मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड विच देन आई थिंक हैज़ हेल्प मी टेक डिसीजंस विच आर क्वाइट रिस्की। कि एक मैकेंजी में जो आई वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आई एम लखनऊ टू जॉइन मैकेंजी, तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। राइट। बट मैंने 4 साल में छोड़ दिया। मैंने एक स्टार्टअप करा। स्टार्टअप इतना बुरी तरह फेल हुआ। आई कुड हैव कम बैक टू मैकेंजी कंसल्टिंग, कि एक बड़ा स्टैंडर्ड पाथ है पार्टनर बनने का, बट मैं मैकेंजी नॉलेज सेंटर गया। फिर मैं फिडेलिटी गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, इतना मैकेंजी में बनाया, छोड़ के मैं राइट। फिडेलिटी चला गया। फिडेलिटी में आई वाज एन एमडी इन अ बिग ग्लोबल रोल, बट सब कुछ कर छोड़ के मैं एक फ्लिपकार्ट चला गया। कि फ्लिपकार्ट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। लोगों ने मेरे को बोला कि भैया क्या कर रहे हो आप, यू आर रियली कम फ्रॉम अ वेरी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट बैकग्राउंड। ये स्टार्टअप तो अलग दुनिया है। फिर फ्लिपकार्ट के बाद आई हैड ऑलवेज वेरी श्योर कि मेरे को इंडिया में रहना है। सो देन आई बॉट अ कंपनी एंड आई वेंट टू द यूएस। तो मैंने अलग अलग बहुत स्टेप्स लिए हैं विच में सीम लाइक बिग जंप्स, बट उनके पीछे आई थिंक पर्पस हमेशा कांस्टेंट रहा है। राइट। आई थिंक वेरी राइटली टोल्ड सर कि अगर वो इंटरसेक्शन पे आपके स्वीट स्पॉट पे आता है तो जर्नी अपने आप डिफाइन होती चली जाएगी। यू हैव टू जस्ट मेक बोल्ड मूव्स। आई थिंक आपकी सेकंड बुक की बात करते हैं। यू टॉक रियली वेल अबाउट डेटा एंड इफ यू लुक एट ऑल दी स्टार्टअप्स आई आल्सो कीप ऑन इंटरेक्टिंग। सबका कहना होता है कि हाँ डेटा हमारे पास होना चाहिए, पर डेटा का यूज कैसे करना है इसके बारे में किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। सो इफ समबडी इज बिल्डिंग अ बिजनेस, हाउ दे शुड गो अबाउट लुकिंग एट द डेटा एंड व्हाट आर सम ऑफ द फंडामेंटल प्रैक्टिसेस दे शुड बी पुटिंग इन प्लेस? देखिए, डेटा जो है इस समय दुनिया में इज प्रॉब्ली द मोस्ट वैल्यूबल एसेट। राइट। जो एआई है, उसका पूरा, एआई के 3 फाउंडेशंस हैं: डेटा, एल्गोरिथम एंड कंप्यूट। बट डेटा शायद सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है, और साथ साथ एक डेटा एक्सप्लोजन हुआ है। सो
अगर आप देखें तो पिछले 90% ऑफ द डेटा ऑफ द वर्ल्ड हैज गॉट जनरेटेड ओवर द लास्ट 2 to 3 years. राइट ये काफी रिमार्केबल नंबर है. बट डेटा इज इट्स ओन प्रॉब्लम. डेटा इज इट्स ओन प्रॉब्लम. डेटा इतना ज्यादा हो गया है दैट टू ब्रिंग इट टुगेदर इटसेल्फ पूरी एक किसी भी कंपनी का सारा जोर उस पर चले जाता है. उनका होता है कि पहले ये डेटा को ना हम इकट्ठा करेंगे एक जगह पे. ये डेटा वेयर हाउस है, डेटा लेक है, डेटा लेक हाउस है, अलग अलग तरह के तरीके हैं. फिर उसमें हम एक सिंगल कस्टमर व्यू बनाएंगे और फिर उस सिंगल कस्टमर व्यू से इतनी बढ़िया इंसाइट्स आएंगे जिससे हम एकदम छक्के मार देंगे. राइट सो वो कभी हो नहीं पाता है. और स्पेशली जो है सबके लिए, बट स्टार्टअप्स बिकॉज दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. सी, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम your data, you have to start from your objectives or your problems, and then you have to define कि इसको, ये जो problem है, think of it as like a like a tree. इसको हम problem को expand करते हैं. ये problem solve करने के लिए मेरे को अपना sales बढ़ानी है. ये sales बढ़ाने के लिए मेरे को क्या क्या possible चीजें हैं, फिर उसके लिए मेरे को क्या data चाहिए, और फिर वो मैं data इकट्ठा करूं. So we have to be one of the, so मेरा second किताब का नाम है Mastering the Data Paradox. Right. And I talk a lot about the paradox. The paradox is water everywhere, yet not a drop to drink. Right. तो भैया एक स्टार्टअप को तो ड्रिंकिंग से मतलब है ना. सरवाइव करना है. हाँ, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि टू मेक सेंस ऑफ डेटा फर्स्ट यू हैव टू नैरो इट. यू हैव टू नैरो द डेटा. एंड नैरो करने के लिए उसको टेक्नोलॉजी सोल्यूशन में मत फंसो पहले. इट इज you हैव टू अप्रोच इट लॉजिकली कि जो डेटा, जो मेरी प्रॉब्लम क्या है उसको मैं ब्रेक डाउन कैसे करूंगा. जब वो कर लोगे फिर आप डेटा को इकट्ठा करो. राइट. नहीं सर, राइटली टोल्ड. आई थिंक डेटा पे ही थोड़ा सा पिवट करते हैं टू एआई इकोसिस्टम. सो बेसिकली 3 तरह की लेयर्स हैं. एक तो आपकी फाउंडेशनल है जहाँ पे मॉडल्स हैं, देन आपकी एक लेयर निकल के आ रही है सोवरन जहाँ पे आपकी सर्वर में एआई आ रही है, देन देयर इज थर्ड एप्लीकेशन लेयर. सो इंडिया में व्हाट वी आर सीइंग इज की फाउंडेशन लेयर पे तो अभी उतना वर्क नहीं हो रहा, बट एप्लीकेशन लेयर पे हो रहा है. सो यू फील की एप्लीकेशन लेयर स्टिल हैज दैट मीट की यहाँ पे और स्टार्टअप्स बिल्ड हो सकती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट. एप्लीकेशन लेयर ही मेरे को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है बाय एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. बाय एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. देखो, कोई भी जो टेकी इंसान होता है ना, तो वो ना एप्लीकेशन को थोड़ा ना डीवैल्यू करता है, क्योंकि उसको लगता है यार कि इसमें क्या टेकी चैलेंज, रैपर प्रोडक्ट है. हाँ, ये तो रैपर है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है. तो एक्चुअल टेक्नोलॉजी तो है, वो तो जो है कंप्यूट लेयर है, या वो तो ऑर्केस्ट्रेशन पे, वो तो जो है मॉडल लेयर है. हमें तो फाउंडेशनल मॉडल बनाने चाहिए. देखिए, वो गलत नहीं है. फॉर अ कंट्री ऑफ आवर साइज we absolutely do need to have our own chips. We do need to have own foundational model. But जो मुद्दे की बात है, देखो, जो AI को लेके जो भारत के लिए मुद्दे की बात है कि we are a very services driven economy. Right, sir. वो सर्विसेज में AI से काफी जॉब का एक लॉस होगा. वो गिवन है, वो हमें पहले मान लेना चाहिए. ठीक है. The only way we will be able to counteract that is if there is a tsunami of entrepreneurship. Right. ठीक है. तभी मैं आपको बोल रहा था, आपका जो सैलरीड क्लब आपने खोला है, तो आप नॉन सैलरीड क्लब भी प्लीज खोलिए आप, बिकॉज वो हमें एक माइंडसेट शिफ्ट करना है. अब नाउ देन द क्वेश्चन बिकम्स, वेयर कैन दैट एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, वेयर डज दैट एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट. अगर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है जहाँ पे फाउंडेशनल मॉडल्स और सब कुछ है, वो बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसमें जॉब्स इतनी नहीं है शशांक. Right, sir. उसमें जॉब्स इतनी नहीं है. दिस इज वेरी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. डीप सीक में 200 इंजीनियर है. राइट. ओपन एआई में 3,500-4,000 है. बट हाँ, माइक्रोसॉफ्ट में बट कई लाख है, कई लाख है. इजंट इट? तो ये वहां से जॉब्स क्रिएट नहीं होने वाली है. तो जॉब्स तो एप्लीकेशन लेयर पे ही होंगी. एप्लीकेशन लेयर में क्यों होंगी? बिकॉज सी, विद एआई एवरी इंडस्ट्री इज गोइंग टू गेट डिसरप्टेड. राइट. It's not just retail or entertainment which are already getting disrupted, but financial services, healthcare, even very traditional industries like manufacturing and industrials, education, agriculture, each industry will get disrupted. और हर industries में मेरे हिसाब से hundreds या maybe thousands of problem statements रहेंगी. Right. Maybe even more. And that is the entrepreneurial opportunity.
एंड दैट entrepreneurial अपॉर्चुनिटी इज इन द एप्लीकेशन लेयर, बिकॉज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स है ना शशांक, वो बिग टेक डोमिनेट करेगा. ठीक है, वो बैरियर टू एंट्री काफी है यो. बैरियर टू एंट्री हाई है. और बट फ्रॉम अ अपॉर्चुनिटी, और वहां पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, you're aware of these companies very, very well, Shashank, that ये सब $1 trillion प्लस इन्वेस्ट कर रहे हैं. हम्म. बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है वो. राइट. ठीक है, भारतवर्ष का पूरा जीडीपी 3 ट्रिलियन है. हम्म. तो ये भाई साहब, ये सब लोग 1-1 ट्रिलियन तो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो बट ये सब लोग जो हैं, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ स्टैक विच इज वेरी स्केलेबल. उस स्केलेबिलिटी में जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना इज नॉट व्हाट दे आर फोकसिंग ऑन. वो एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी है, वो भारतवर्ष में अपॉर्चुनिटी है, और वो एप्लीकेशन लेयर है. चाहे हमें लगे यार कि एज अ टेकी की यार ये इतना इतना इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग नहीं है, बट दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटी इज, आई थिंक. नहीं सर, वेरी राइटली टोल्ड, बिकॉज आई ऑल्सो फील कि अगर आप कोई वैसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो एकदम यूज केस है फॉर से चैट जीपीटी और जेमिनाई, वो बट ऑब्वियस मॉडल को फाइन ट्यून कर देंगे. जैसे बेस्ट एग्जांपल ग्रामर सही करना अपने टेक्स्ट का. बट इफ यू आर गोइंग वर्टिकल डीप कि आपने कुछ लॉ स्पेसिफिक बना दिया, हेल्थ केयर, देन दीज कंपनीज माइट नॉट वर्क इनटू इट. दैट इज वेयर होल बिकॉज अपॉर्चुनिटी. डोमेन नॉलेज जो है बड़ा मुश्किल काम होता है. राइट. बट उसके लिए भी एक बात है कि जो हमें समझना पड़ेगा कि डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा राइट. एप्लीकेशन लेयर में काम करने के लिए, बिकॉज वो सुपरफिशियल नॉलेज से नहीं कर सकते हो आप. राइट. उसमें जैसे आपने लॉ की बात करी है, हेल्थ केयर की बात करी, कोई भी फील्ड है, उसमें थोड़ा आपको एक समझना जरूरी है, उसमें थोड़ा डीप में जाना जरूरी है. Right. Sir, you have been a consultant for significant amount of time. So consulting as a field, you also feel ki will be disrupted. The kinds of McKinsey, Bain, BCG, will they also start seeing the impact because of knowledge is available? What will be their एब्सोल्युटली, mode? एब्सोल्युटली कंसल्टिंग बहुत अ, बहुत सिग्निफिकेंटली डिसरप्ट होगा, और वो डिसरप्ट आज से नहीं, वो कई सालों से होता जा रहा है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, कि जब मैंने कंसल्टिंग स्टार्ट करा, वो थोड़ा समय हो गया 96, तो हम एक बेसिक रिसर्च ही बहुत बड़ी बात होती थी. Right. कि एक किसी के लिए हम ट्रैक्टर मार्केट की हम स्टडी कर रहे हैं, और वो कि अच्छा एक एंट्री स्ट्रेटेजी फॉर ब्राजील. तो भाई 3-4 लोगों की टीम ब्राजील चले गई 2-3 महीने के लिए, पूरा स्टडी करने के लिए कि, और वहाँ पे डेटा इकट्ठा करने के लिए कि भैया ट्रैक्टर मार्केट का हम साइजिंग करेंगे. और बड़े इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं आईएम्स के लगे हुए हैं, पूरा वो एकदम दिमाग लगा के साइजिंग करने में. और जस्ट इन अ कपल ऑफ इयर्स, आफ्टर द इंटरनेट एज, वो सब खत्म हो गया ना एकदम, बिकॉज वो इंटरनेट पे वो सारा डेटा अवेलेबल है. अब विद एआई ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू अ वेरी डिफरेंट लेवल, कि अब जो आपका एक फंडामेंटल आउटपुट ऑफ कंसल्टिंग हिस्टोरिकली इज द पावर पॉइंट. Right. अब वो काफी कुछ जो पुटिंग दैट एनालिसिस टुगेदर, एंड bringing it together into a client presentable document, AI will begin to do that. But ये भी साथ साथ है कि जो कंसल्टिंग जो वैल्यू प्रोपोजिशन है शशांक, वो इवॉल्व होगी उसके साथ. Right. तो ये जो स्ट्रेटजी, रिसर्च, एनालिसिस, ये सब काम कम हो जाएगा बहुत, बट एक एग्जीक्यूशन सपोर्ट तो चाहिए ना. जैसे मेरी कंपनी है, इंसीडो है, और हम मैकेंजी के साथ compete करते हैं कई चीजों में, डेटा एआई में हम compete करते हैं, बट मैं मैकेंजी, मेरा एक, आई ऑल्सो वर्क विद मैकेंजी, Right. दे आर अ कंसल्टिंग पार्टनर फॉर मी. और मैं पिछले 2-3 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ. क्यों कर रहा हूँ मैं? ऑल्दो आई एम माई सेल्फ, आई स्पेंड 14 years इन मैकेंजी, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, बट भाई मेरे को एग्जीक्यूशन सपोर्ट चाहिए होती है ना. मेरी खुद की टीम तो एक मेरी ग्रोथ कंपनी है, उसमें पूरा लगी हुई है. Right. There are many projects on which I need some good people who can support me with execution. So consulting में मेरे हिसाब से ये जो execution support वाला काम काफी बढ़ेगा. स्ट्रैटेजी थोड़ी कम होगी, एग्जीक्यूशन है आई थिंक हम्म, थोड़ा ज्यादा पिक करेगा. हम्म, राइट. राइट. हम्म. सर, आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आपने बात की कि एआई इज गोइंग टू डिसरप्ट. तो अगर मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि आई नो कि इट इज कमिंग, इट माइट इम्पैक्ट जॉब्स अराउंड मी, सो हाउ शुड आई गो अबाउट देन अप स्किलिंग माई सेल्फ एंड इंश्योरिंग कि माई जॉब रिमेन्स इंटैक्ट इन दिस चेंजिंग मार्केट? देखिए, आई थिंक इसके ना 2-3 फेजेस हैं मेरे हिसाब से. सबसे पहला फेज तो ये है कि you have to make sure that you are part of the change. So अब जैसे हमारा काम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा
हम ये सब पे काम करते हैं. That entire process is getting disrupted by AI very massively. We are in the age of software 3.0, where software is writing software. राइट. तो अब द मेन जो लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज है वो डॉट नेट जावा तो नहीं है हमारी, अब वो इंग्लिश है. राइट. तो अब थ्योरेटिकली जो एक सीनियर इंजीनियर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है देन अ जूनियर इंजीनियर, राइट. बिकॉज द सीनियर इंजीनियर इज गोइंग टू डिजाइन द प्रॉम्प्ट्स, is going to do the review and all of that. राइट. But practically जो हम देख रहे हैं practically कि sometimes the senior people are more resistant, वो change नहीं करना चाहते हैं. राइट. और जो जूनियर इंजीनियर है वो तो फटाफट कर रहे हैं. सो अभी मेरा पिछले फ्राइडे को मेरा एक हमारा बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट है, तो उनके साथ क्वार्टरली रिव्यू था. और दे आर वेरी अपना एक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कंपनी, तो उसमें हमेशा रहता है कि बहुत हमें तो सीनियर और एक्सपीरियंस टैलेंट का चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट्स पे काम करे. तो हमारी टीम ने ना, एंड द इंटायर कॉन्वर्सेशन वाज अबाउट यूजिंग एआई. राइट. सो हमारी टीम ने एक स्पेसिफिकली रिकमेंडेशन दिया था कि वी विल बी नाउ बी यूजिंग फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट्स. ओह. It sounds, counter, intuitive, but because they are more change ready. राइट. So पहला स्टेप तो ये है भैया कि पहले तो थोड़ा जो है ना, डोंट एक लिव इन योर कोकून. हाँ, एक वो हु मूव्ड माय चीज एक किताब है ना कि भैया द चीज इज मूविंग. मूविंग. राइट. तो फर्स्ट रियलाइज दैट. तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि you're just be change ready, learn the AI tools, but ये एक बहुत बेसिक चीज है मेरे हिसाब से. The second thing that comes is that the way the work is evolving, what skills will be most important. This is assuming a job is there, राइट. and human in the loop is there, राइट. and where is the human going to add value. And इसमें सबसे बड़ा जो चीज मेरे हिसाब से है वो है context. कि कोई भी AI मॉडल है वो 100% तो नहीं है. राइट सर. उसका आउटपुट 80% है, 85 है, 90%. हेलुसिनेशंस होते रहेंगे उसमें. हाँ, कुछ भी बायस है, कुछ भी है, या देयर इज अ ब्लैक बॉक्स, इट इज नॉट एबल टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, राइट. इट इज टू कॉम्प्लेक्स. सो वो जो 20% या 25% गैप है, दैट इज वेयर द ह्यूमन वैल्यू कम्स इन. एंड हाउ इज द ह्यूमन गोइंग टू ऐड वैल्यू? दैट कम्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट. This word called context, राइट. that you have a certain perspective on the topic. और वो context कैसे build करते हैं आप? You do that through your domain understanding. So जो second phase है, हमने पहले phase की बात करी, second phase है, वहाँ पे there is a need to evolve from more a technical orientation or technical skills to this domain knowledge. Domain knowledge is going to become very, very critical. और फाइनली जो तीसरा स्टेज है इज मोर डिसरप्टिव, कि जहां पे जॉब्स, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, जॉब्स और जाएंगी. एंड वेयर आई थिंक द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बी एन एंटरप्रेन्योर. आपको नॉन सैलरीड के लिए, नॉन इनकम नहीं, नॉन सैलरीड की, जहां पे आपको जो एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, you have to train yourself to be an entrepreneur, which is what I see you also doing. Right. So आप step by step अपने को train कर रहे हैं, because entrepreneurship भी सबके लिए ऐसा नहीं है कि suddenly छलांग लगा दो. हाँ, right sir. वो भी एक, उसके लिए भी एक skills चाहिए होती है, एक mindset चाहिए होता है, and you have to prepare yourself for that. So I think those would be the 3 stages. Right. So अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें जनरल, सो मेजरली मोस्ट ऑफ द जॉब्स दीज डेज क्रिएटेड आर गिग इकोनॉमी जॉब्स, या आपकी क्विक कॉमर्स फर्म्स हो गई, या ई कॉम फर्म हो गई, या आपके बीपीओज हो गए. तो क्विक कॉमर्स को तो मैं साइड हटा दूं, पर बीपीओ इज वन एरिया वेयर आई फील कि देयर विल बी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, क्योंकि वॉइस एआई एजेंट जब आ जाएगा तो आप एट स्केल 24 घंटे कभी भी कॉल करा सकते हो. सो डू यू सी कि देयर विल बी सर्टेन इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत मैसिव इम्पैक्ट होगा, और कुछ ऐसी होंगी जहाँ पे पॉजिटिव मैसिव इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों है शशांक. वो ऐसा नहीं कि सी ऑफ कोर्स यू आर राइट कि जो वेरी सर्विसेज ड्रिवन इंडस्ट्रीज, कि जो कस्टमर सर्विस है या इवन टेक्नोलॉजी है, तो उसमें तो बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट है. बट हर इंडस्ट्री में ना
वो इम्पैक्ट होगा इवेंचुअली। हम्म, अब जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज या इवन हेल्थ केयर टू एन एक्सटेंट, उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है एआई की, राइट, बट उसमें अभी इतना नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ रेगुलेशन। हम्म, ठीक है, तो इम्पैक्ट तो हर इंडस्ट्री में है, बट जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट। हम्म, ठीक है, सो एआई से फंडामेंटली देयर आर 4 थिंग्स दैट आर हैपनिंग। पहला जो है पर्सनलाइजेशन। राइट, ठीक है, कि अभी इंडस्ट्रियल एज का एक बेसिक आर्गुमेंट था कि अगर आपको स्केल चाहिए इट मीन स्टैंडर्डाइजेशन, हम्म, बट अब ये एआई से और एक्चुअली ये जो एआई डिजिटल डेटा तीनों को मिला के यू कैन हैव पर्सनलाइजेशन विच इज एट स्केल। राइट, कि अब जैसे कोई भी आप अमेजोन पे जाते हैं, नेटफ्लिक्स पे जाते हैं, जो आपको दिखेगा और मेरे को दिखेगा वो बहुत अलग है। डिफरेंट है, राइट सर, वो पर्सनलाइजेशन है और वो इनफाइनाइट स्केल पे और वो रियल टाइम बेसिस पे हो रहा है। हम्म, अब यही चीज जो है ये सिर्फ ई कॉमर्स में नहीं बट हर में, ये अब जस्ट इमेजिन करिए एजुकेशन में होगा, हेल्थ केयर में होगा, हर चीज में होगा ये। अभी मेरा संडे को आई वाज इन मुंबई और वी वर हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अराउंड इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन फिल्म्स। तो आशुतोष गोवारिकर, मोहित सूरी, उनकी भी बड़ी एक हिट फिल्म अभी आई है, हाँ, सोहा अली खान, इनके साथ बहुत इट वाज अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। एंड वन ऑफ द थॉट्स वाज दैट not all films, but there may be a new genre of films राइट, which are very AI driven, which are like almost like personalized. You're co-creating it, based on कि भैया आपका इंटरेस्ट क्या है, हाँ, हाँ, शशांक के लिए अलग मूवी है वो और मेरे लिए अलग मूवी है। राइट, सो हर फील्ड में उस पर्सनलाइजेशन का इम्पैक्ट है। सेकंड जो इम्पैक्ट है ऑटोमेशन, जिसकी हमने बात करी। हाँ, राइट सर, ऑटोमेशन जनरली एक एटलीस्ट ह्यूमन पर्सपेक्टिव से शायद थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि उससे एक जॉब पे इम्पैक्ट होगा। हाँ, थर्ड इम्पैक्ट है इनोवेशन, कि अब बड़ी सारी फील्ड्स हैं जैसे फार्मास्यूटिकल्स, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट इज लाइक $1 बिलियन। हाँ, एंड दैट यू आर नॉट श्योर कि वो सक्सेसफुल होगा वो बिकने, सट्टा है एकदम। हाँ, राइट, बट अब एआई से यू कैन ड्रामेटिकली रिड्यूस दैट कॉस्ट हम्म, एंड ड्रामेटिकली रिड्यूस दैट टाइम। राइट, लॉट ऑफ दैट R&D now, drug R&D is being driven by AI. A lot of that data is also synthetic data. और फाइनली ये तीनों का होता है कि इम्पैक्ट ऑन बिजनेस मॉडल्स। राइट, और बिजनेस मॉडल्स में भी अलग अलग तरह के इम्पैक्ट है, कि एक है कि जैसे अभी B2B B2C मॉडल्स होते हैं, ये एआई से और डिजिटल डेटा से B2C मॉडल ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं। राइट, सो यू कैन कट आउट द मिडल मैन। राइट, ठीक है, आप भी यही कर रहे हैं। राइट, जो आपका पॉडकास्ट आप डायरेक्टली डिलीवर कर रहे हैं, इजंट इट? राइट, जो दूसरा है कि वैल्यू चेन्स एकदम डिसरप्ट हो रही हैं। हम्म, अगर आज आप बैंक हो, यू डोंट फियर अनदर बैंक, राइट, यू फियर मे बी अ फिनटेक, और फिनटेक से भी ज्यादा यू फियर गूगल और अमेजोन और एप्पल, बिकॉज उनके वो आज जो एक अटैकर है इज लाइकली टू कम नॉट फ्रॉम विद इन योर इंडस्ट्री बट फ्रॉम समवेयर एल्स। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा एक लॉजिक होता था कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर तो कमोडिटी है, राइट सर, ठीक है, जितना आप कस्टमर के पास उतना वैल्यूबल है। हम्म, बट आज दुनिया में सबसे वैल्यूबल कंपनी कौन सी है? वो सारी Google, एनवीडिया। हाँ, राइट, एनवीडिया, इजंट इट? जो B2B में, वो इट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। राइट, और फाइनली आपके ये एआई नेटिव बिजनेस मॉडल्स बन रहे हैं, ठीक है, कि जहां पे प्रोडक्ट भी एआई है, प्रोसेस भी एआई है, बड़ा सिंपल और एफिशिएंट आपका काम करने का तरीका है, वेरी फ्यू ह्यूमंस इन द लूप, राइट, ठीक है, वेरी हाई रेवेन्यू पर ह्यूमन। राइट, So, see, there are all of these shifts happening: personalization, automation, innovation, and new business models. This is the big opportunity, शशांक। ये हर इंडस्ट्री में होने वाला है, ठीक है, ये हर इंडस्ट्री में होने वाला है। इंडस्ट्री में जॉब लॉसेस भी होंगी, जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पे जल्दी हो रही हैं, जो हमने बात करी, राइट, कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजी, बट ये बाकियों में भी होंगी। बट ये जो इंडस्ट्री डिस्रप्शन है ये भी हर इंडस्ट्री में होगा, और इससे बहुत बहुत मात्रा में, बहुत स्केल पे स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। और ये इतना डिसरप्टिव है कि ये जो, देखिए, जब कोई भी चेंज या इनोवेशन होता है वो इंक्रीमेंटल होता है, तो इनकम्बेंट जो होता है ना, जो अंदर ऑलरेडी है, वो जीतता है। राइट, बट जब चेंज बहुत डिसरप्टिव होता है वो तो अंडरडॉग जीतता है। राइट, वो अंडरडॉग कहीं से भी आ सकता है। सो आई थिंक दैट इज द पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी विच आई वांट टू लीव योर लिसनर्स विद,
क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव नेगेटिव पे फोकस करते रहते हैं, वो नेगेटिव तो है भाई, हाँ, वो तो चेंज होगा ही होगा। हाँ, बट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव भी है। सर अगर बात करूं, यू हैव बीन टू यूएस, आप काफी शफल करते रहते हो, सो द काइंड ऑफ टेम्परामेंट यू सी इन से स्टार्टअप फाउंडर इन सिलिकॉन वैली कंपेयर टू देयर इंडियन काउंटरपार्ट, इज इट मोर और लेस द सेम, आर देयर सम गैप्स दैट यू फील की कैन बी ब्रिज्ड हियर, स्पेशली व्हेन इंडियन इकोसिस्टम की हम बात करें, कम्स टू बिल्डिंग आउट एआई बेस्ड कंपनीज? देखिए मेरे को बहुत अब इंडिया में भी मेरे को बहुत रिस्क टेकिंग और पॉजिटिव एनर्जी मेरे को दिखती है। हम्म। मैं कल ही था यहाँ पे, भारत मंडपम है वहाँ पे, एंटरप्रेन्योर्स इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सो आई वाज शेयरिंग अ वेरी लार्ज सेशन विद maybe 25-30 startups and I was so impressed, I was so amazed कि इंडिया में भी आज से 5 साल पहले ये बात नहीं थी कि राइट। इतना एनर्जी, इतना रिस्क टेकिंग, इतने अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स। सो इंडिया में भी जो है ना, हमारा देश बदल रहा है राइट। और पॉजिटिवली बदल रहा है। और ये जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि आईआईटी आईएम से आ रहे हैं या कि ये दिल्ली मुंबई बैंगलोर से आ रहे हैं। बहुत सारे जो हैं ये छोटे शहरों से आ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सभी बहुत ही कोई बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आ रहे हैं। हर बैकग्राउंड से इंसान आज सोचता है कि मेरे को कुछ अलग करना है। राइट। तो मेरे को ये जो पॉजिटिव एनर्जी, रिस्क टेकिंग मेरे को बहुत दिख रहा है। जो मेरे को एक अंतर दिखता है कि वो थोड़ा डेप्थ का मेरे को दिखता है। राइट जो सर। यूएस में मेरे को स्टार्टअप्स दिखते हैं, वो ना बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ चाहे वो टेक्निकल है या बिजनेस प्रॉब्लम है, दोज आर वेरी वेरी बहुत स्पेसिफिक है। यहाँ पे थोड़ा स्केल से एंटाइस होके लोग हाँ, यहाँ ब्रॉडर पे पे कर। थोड़ा यहाँ पे शैलो है हमारे हम्म। स्टेटमेंट्स। राइट। थोड़ा सा कॉपी कैट टाइप हम्म। दिखता है कि जो अमेरिका में किसी ने कर लिया ये, वो यहाँ पे तो रखो। और उसको एंड अ लॉट ऑफ थोड़ा सा अभी भी ना, देखो स्टार्टअप भी ना मेहनत का काम है। हम्म। ये इतना गेट रिच क्विक स्कीम, 21 दिन में पैसे डबल देंगे। हाँ, ये स्कीम नहीं है ये, जो अभी शायद लोगों को लगता है। हम्म। अभी बहुत है कि यार ये एक मॉडल है, वहाँ पे अमेरिका में चलो सक्सेसफुल हो गया हम्म। और इस पे यहाँ पे फंडिंग हो जाएगी, वैल्यूएशन अच्छी आ हाँ। जाएगी। आई थिंक टू मच ऑफ द फोकस इज ऑन दैट एंड एज अ रिजल्ट व्हाट वी आर टुडे प्रोड्यूसिंग इज शैलो। राइट। और यही अंतर है शशांक। हम्म। टैलेंट में कोई कमी नहीं है, एक एनर्जी में कोई कमी नहीं है, बट हमें थोड़ा सा एक वो है ना मैच्योरिटी, और उसके लिए शायद मेंटरिंग और रोल मॉडल्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनका रोल, राइट। कि भाई थोड़ा सा सॉल्व सम रियल प्रॉब्लम्स। राइट। एंड दोज रियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कागजी नहीं होती हैं, हम्म। वो फेल्ट होती हैं, वो आपके एक्सपीरियंस से आती हैं। और उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और फिर उसके लिए जो आपको जिस तरह करना भी है, you should find capital or an investor who understands your problem, what you're trying to do. ये नहीं कि भैया जहाँ पे पैसे मिले उसको झपट्टा मार लो हाँ। राइट। हाईएस्ट वैल्यूएशन पे। तो वो ये जो है ना, डेप्थ ओवर ब्रेड्थ is maybe the biggest thing I would say for Indian startups today. या आई थिंक राइटली टोल्ड सर, तभी गवर्नमेंट का भी फोकस थोड़ा है कि डीप टेक में और आप लोग जाओ, डेवलप करो कुछ आइडियाज। बट मैं थोड़ा पर्सनल साइड पे शिफ्ट करना चाहूंगा। आई थिंक दूर से टाइटल सबको बहुत फैंसी लगता है, सीईओ, को फाउंडर, बट व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन योर लाइफ? आप कितने टाइम ऑन रहते हैं? इज देयर अ ऑफ बटन एज वेल, एंड हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस? देखिए मेरा जो, बहुत लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि आप इतनी चीज़ें इकट्ठे करते हैं, तो देखिए फैमिली लाइफ भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई हैव 3 चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स वाइफ, एंड जॉइंट फैमिली से मैं आया हूँ, तो फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा शुरू से मानना ये रहा है कि अब लाइफ में जो बैलेंस है ना, वो आप एकदम ना डब्बे बना के नहीं कर सकते हो। राइट। अम, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो है कि एक थोड़ा हार्मनी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो दोनों में से एक पे भी अच्छा करना बड़ा मुश्किल काम है। राइट। तो वो मैंने हमेशा थोड़ा करा है कि, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड यू नो दैट माय वाइफ इज वेरी वेरी सपोर्टिव, बट मेरे तो बीवी बच्चे भी सब मेरे काम में बहुत इन्वॉल्व है, बहुत इन्वॉल्व है और शुरू से इन्वॉल्व है। तो बिकॉज उनको पता है और मेरे को भी पता है कि भैया मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट। तो अगर आप उनको इससे दूर रखो तो फिर होता है कि अच्छा, दिस इज नॉट आवर लाइफ। सो दे आर, सो एक
मेरा हमेशा कि यू हार्मोनाइज थिंग्स। Right. दूसरा है कि यार इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में, योर कैपेसिटी टू डू थिंग्स इज अ फंक्शन ऑफ योर एनर्जी। Right, sir. अगर एनर्जी है तो बहुत कुछ कर सकते हो। अब मोदी जी को देख लीजिए कि भैया इतनी 75 में भी है। 75 पे उनकी एनर्जी, हम तो उसका फ्रैक्शन भी नहीं कर सकते हैं। हम्म, तो क्या खाया उन्होंने? हम्म, तो सो एक एनर्जी बहुत बड़ी बात है। तो मेरा हमेशा ये एक मानना है कि लाइफ में व्हाटएवर यू डू, ईदर इट क्रिएट्स एनर्जी और इट कंज्यूम्स एनर्जी। Right. आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो या तो ये एनर्जी हमारे लिए क्रिएट करेगी, हम्म, या यार कि भाई ये क्या है यार, ये खत्म हो। Right. इजंट इट? Right, sir. सो मेरा जनरली ये रहता है कि टू टू द एक्सटेंट पॉसिबल ट्राई टू डू थिंग्स विच क्रिएट एनर्जी। और जहां मेरे को पता है कि इट इज गोइंग टू सक आउट एनर्जी, मैं वो चीजें अवॉइड करता हूँ। तो अब जैसे इट इट फंडामेंटली गोज टू द टाइप ऑफ वर्क आई डू। अब व्हेन आई वाज लाइक मे बी 20 इयर्स बैक, अब मेरे पास ऑप्शन था कि या शायद मैं कुछ प्राइवेट इक्विटी में, वेंचर कैपिटल में चले जाऊं। हम्म, तो मैं तो गया, मैं मेरे को याद है मैं पहली बार एक प्राइवेट इक्विटी से मिलने गया, आज से 20 साल पहले। मैं ओबरॉय में गया, एक रूम था, वहाँ पे 3-4 लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा बाप रे, ये तो मैं मर जाऊंगा यार, कि ये बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठ के मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ। मैं आई नीड टू टॉक टू पीपल। Right. I need like 100 people, 200 people, 1000 people, 10,000 people that I can be engaging with. जो आपने शुरू में पर्पस वाली बात कही थी, हाँ, सेम। तो वो आई थिंक knowing yourself is very important. And generally, I think I've tried to make choices which are aligned with who I am. और जब वो रहता है ना, तो जो चीजें ना फ्लो करती रहती हैं, तो ऐसा रुकावट नहीं आती है। I think a lot of people watching this are also new parents. So parenting any tips you'd like to share कि जब आप करियर में बहुत एक्सेलरेट कर रहे होते हो, तो ये उसी टाइम आपके बच्चे भी बड़े हो रहे थे। So how you made ensure कि एटलीस्ट वहां पे भी प्रॉपर टाइम जाता रहे? What were some of the hacks that you use जो मेरे जैसे न्यू फादर्स एटलीस्ट यूज कर सकते हैं? भैया, पहली बात तो मैरी राइट। Very true. तो आई थिंक सी, देखिए टीम स्पोर्ट है, हाँ, राइट सर। पेरेंटिंग टीम स्पोर्ट है। और कभी जैसे वो है ना, टीम साइकिलिंग होती है ना, तो कभी कोई आगे चलता है, फिर कभी कोई आगे चलता है। तो आई थिंक वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो सी, फॉर द लॉन्गेस्ट पार्ट इन माय करियर, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग सो मच, राइट, my wife played a very 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 critical role and the foundational role. राइट, तो अगर उनका नहीं होता तो मैं ये सब चीजें नहीं कर पाता। बट अब जैसे था कि मेरा पैशन हमेशा एक स्पोर्ट्स के लिए था, वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स। तो है कि अब वो तीनों बच्चों को मैंने स्पोर्ट्स तो जरूर कराया, और वो टाइम आपके साथ। मेरे साथ था। हम्म, और जो है, और वो एक 100% था। हम्म, तो जब मैं वहाँ पे उनको, बड़ी वाली टेनिस करती थी या छोटी वाली स्केटिंग करती थी, तीसरा जो है स्क्वॉश खेलता है, तो मैं पूरा वहाँ पे था। हम्म, और जब समय लगाने की बात हुई तो मैंने काफ़ी समय लगाया उनके साथ। हम्म, तो मेरा जो छोटा बेटा है वो यूएस में स्क्वॉश खेलता है, और वो 2 साल ऐसे थे कि जहाँ पे उसने 55 टूर्नामेंट खेले, नाइस, 55 टूर्नामेंट्स। दैट इज अ मैसिव नंबर। तो यानी हर ऑल्टरनेट वीकेंड हम गाड़ी में या फ्लाइट लेके हम कहीं पे जा रहे थे टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो 55 में से मैंने 50 में तो था मैं उसके साथ। वेरी नाइस सर। तो जो है सी, एक और भी चीज़ है जो हमने पहले बैलेंस की भी बात करी थी, कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो हम शायद क्लास 4th 5th में एक हमने वो साइंस का एक वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था ना, कि एक जार है, उसमें आपको रॉक्स को डालना है। हम्म, तो कैसे डालोगे आप? तो यू विल पुट द बिगेस्ट रॉक फर्स्ट, सेकंड रॉक, ये तरीका है उसको पूरा ढंग से। प्रॉपर्ली करने हाँ, का। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है लाइफ में, और वो एक थोड़ा सा हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ दैट विजडम एंड क्लैरिटी टू अंडरस्टैंड दैट। तो फैमिली, मेरा तो मानना है कि फैमिली इज द फर्स्ट रॉक। राइट, अगर फैमिली नहीं है तो फिर और बाकी चीजों का फायदा नहीं वही है। फाउंडेशन मॉडल है, हाँ, जैसे एआई हाँ, का वो मॉडल। फाउंडेशन मॉडल है, उसके ऊपर अगर वो फाउंडेशन मॉडल है तो बाकी पूरा किला बना सकते हो। राइट, और उस पे समय लगाना, एंड देयर आर मेनी मोमेंट्स व्हेन दैट एक्चुअली इज द मेन थिंग। राइट। I'll come to the last question, sir. So there is lot of talk about ethics, biases in AI, and responsible AI. What's your take on that? कि how AI can become more responsible in future? Right? बहुत बड़ा टॉपिक है।
जो मेरे सारे क्लाइंट्स हैं, स्पेशली जो बैंक्स हैं, हेल्थ केयर कंपनीज हैं, वो तो रिस्पॉन्सिबल एआई के बिना आगे बढ़ते ही नहीं है। राइट। तो मैंने ये भी देखा है कि एक जो बी टू सी एप्लीकेशन और बी टू बी में बहुत अंतर है। बिकॉज बी टू सी में तो लोगों के लिए एआई इज चैट जीपीटी, राइट, और चैट जीपीटी ने जो बोला वो भगवान है। सत्य है एकदम। हाँ, तो और उसमें जो हेल्यूसिनेशन बायस जो भी आते हैं वो उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाते हैं। बी टू बी में मैं देख रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबल एआई, शशांक, जो एक फ्रेमवर्क है वो काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो किसी भी, जैसे हमारे क्लाइंट्स हैं, उसमें वो एआई के यूज़ के लिए, और एआई का सबसे बड़ा जो ये जो रिस्पॉन्सिबल एआई और एथिक्स की बात करते हैं ना, इट गेट्स डाउन टू डेटा। राइट। ओके। अब एआई को इतना करना आसान नहीं है, बट उसका मेन जो इनपुट को कंट्रोल करना इज द आंसर। तो किसी भी अब कंपनी में एक कोई डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, कि what is the right data that needs to go into the model, so the model produces good results, how do you test the models, how do you explain the output, राइट। because AI fundamentally एक black box है। उसका एक ट्रेडिशनल जो मॉडल्स और एआई में ये अंतर है, वो इनपुट आउटपुट था, ये तो भाई पैटर्न के ऊपर है और ये ब्लैक बॉक्स है। सो दिस देयर इज एंटायर फील्ड इमर्जिंग ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी, राइट। और फिर उसको टेस्ट कैसे करो। तो ये सारे जनरली मैं एंटरप्राइजेस में देखता हूँ कि ये प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। तो शायद इतना वो घबराने की उसमें जरूरत नहीं है, उसमें जरूरत नहीं है। जो बी टू सी है वहां पे मेरे को सडनली बहुत मेरे को घबराहट होती है। दो तरह के इश्यूज मेरे को लगते हैं कि जो एथिक्स को लेके जो इंपॉर्टेंट है। पहला है डेटा प्रिवेसी, राइट। कि आप भाई, हम जब भी इंगेज कर रहे हैं एआई के साथ, तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। हम अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, हाँ। और हमें पता नहीं कि हम क्या यूज शेयर कर रहे हैं और कैसे यूज होगा। राइट। सो और वो कुछ कुछ आपसे लिखवाते हैं, बट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा वो। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन वो तो हमेशा कि जल्दी से नीचे जाओ साइन और उसको करो। साइन कर दो। तो अरे भैया, अब कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे एक गाड़ी आप लेते हो, उसका तो स्टैंडर्ड है ना, डिफाइंड है। ये इतने इको लेवल पे, इतने इको लेवल पे। आप कोई खाना, आप कोई भी एनी फूड प्रोडक्ट, यू हैव ऑल द स्पेसिफिकेशन। व्हाई नॉट ऑन अ एआई प्रोडक्ट? राइट। राइट। That choice should not be with you, like because you're not in a position to make that choice. You're not in a position to read that long thing and say ki whether I accept or not. राइट। There have to be global standards for that, and this is a very important aspect. A lot of over the next 12-18 months, we need to have global standards. It's not just, even when I wrote my second book, Mastering the Data Paradox, that's a big point I've been making. So ये data privacy standards बहुत important है। और सो दैट्स द नंबर वन थिंग। सेकंड है बायस, बिकॉज अगर मॉडल्स में कुछ बायस आता है, वो एकदम जो है वो कैस्केड होता है। राइट। एंड अभी ये है कि दैट इज वेयर मे बी दिस क्वेश्चन अबाउट हाउ डू वी मेक समथिंग विच इज ग्लोबली कंसिस्टेंट, बिकॉज अभी काफी कुछ जो मॉडल्स हैं वो यूएस में बने विद देयर ओन सेट ऑफ बायसेस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर आप विकिपीडिया देखें, विकिपीडिया में अभी आप टेस्ट कर सकते हैं, आप हिंदुइज्म को सर्च करें, ठीक है, उसमें 80-85% ऑफ कंट्रीब्यूटर्स हैं वो नॉन इंडियन है। अच्छा। आप प्लीज टेस्ट करें इसको, ठीक है। और वो फैसिनेटिंग चीज नहीं है क्या, कि राइट। भाई अब एक जो एक्चुअल मूल रूप से भारतीय है, उसके व्यू पॉइंट है ही नहीं, वो उसके दूसरे। व्यू पॉइंट है ही नहीं, वो एक अलग व्यू पॉइंट है, ठीक है। Definitely you and I may see that as not balanced, as maybe as having some biases. राइट। Now Wikipedia is one of the main sources for the LLMs. अब वो उसमें भी प्रोजेक्ट होगा, और मैं तो कई बार जाके चैट जीपीटी, ग्रॉक, इन सब में वो पूछता हूँ सवाल कुछ, और आंसर जो आता है मेरे हिसाब से बायस्ड है। राइट। मैं उसको फिर एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, तो वो अपने, द गुड थिंग अबाउट जनरेटिव एआई इज कि वो अपने को फिर बोल भी देता है, हाँ मे बी दिस इज द ऑल्टरनेट व्यू। सो ये बायसेस जो हैं, एंड सिस्टमिक बायसेस, we again, it gets down to data standards, राइट। ठीक है। everything gets down to data standards. So ये जो B2B, I think generally the responsible AI
फ्रेमवर्क एंड द सेफगार्ड्स आर इन प्लेस, बट जो B2C है उसमें डेटा प्रिवेसी एंड द डेटा स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट बायसेस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। नहीं सर, वही राइटली टोल्ड, क्योंकि अब सारी जर्नी मैं देखता हूँ 10-11 ईयर ओल्ड की भी चैट जीपीटी से शुरू होती है। एंड यू आर वेल इन्फॉर्म्ड कि आपने उसको काउंटर क्वेश्चन पूछ के वहाँ पे कोर्स करेक्ट किया। पर अगर एक पूरी जनरेशन को हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड करते रहेंगे तो वो उसी पे ट्रेन हो जाएगी, तो हमारी न्यू जनरेशन की मॉडल डिफरेंट हो जाएगा। सो आई विल कम टू वन फाइनल क्वेश्चन। द नेम ऑफ द बुक इज ह्यूमन एज इन द एआई एज। सो यू कैन यू लेट मी नो व्हाट इज वन एज दैट ह्यूमंस कैन हैव इन एआई एज? देखिए तभी जो है हम आर ह्यूमननेस एंड तभी मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया, पॉसिबल फ्रेमवर्क। तो पॉसिबल एक एनाग्राम है, P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, O फॉर ओपननेस टू चेंज, S फॉर स्पिरिचुअलिटी, S फॉर स्पोर्ट्स, I फॉर इम्पैक्ट विच इज आर डिजायर टू लीव अ लेगेसी, मेक अ डिफरेंस। फिर जो है 6 B फॉर बैलेंस, 7 L फॉर लीडरशिप एंड 8 E फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये दिस इज व्हाट आई थिंक आर द, I call them the 8 timeless mantras or timeless human skills which we need to double click on। ठीक है, पॉसिबल। इसको और भी सिंपल करना है, बिकॉज आजकल तो हम एकदम यूथ के लिए एकदम और भी कुंजी बनाना जरूरी होता है। 30 सेकंड का अटेंशन स्पैन है। हाँ, अगर इसकी कुंजी बनानी है तो मैं बोलूंगा 3 C's। पहला C है कॉन्टेक्स्ट, जिसकी हमने बात करी। दूसरा C है क्रिएटिविटी, बिकॉज चाहे AI भी क्रिएटिव है बट ह्यूमन क्रिएटिविटी इज वेरी मल्टी डायमेंशनल। और तीसरा C है कनेक्शन, विच इज ह्यूमन कनेक्शन। आज हम ये कॉन्वर्सेशन वर्चुअली भी कर सकते थे, बट हम आपस में मिले तो एक अलग एनर्जी है, अलग एक कनेक्शन हमारा बैठा, और उससे एक अलग आई होपफुली एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। तो पॉसिबल, अगर पॉसिबल पूरा ध्यान ना रहे तो 3 C's, कॉन्टेक्स्ट, क्रिएटिविटी, कनेक्शन। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट नोट टू एंड द कॉन्वर्सेशन। आई एम क्वाइट श्योर कि आपकी लीडरशिप और गाइडेंस में मे बी आई विल आल्सो बी एबल टू मेक सम इम्पैक्ट। उस सैलरीड प्रोफेशनल्स को हम नॉन सैलरीड में डेफिनेटली चेंज करेंगे। बट थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू।